अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही जी जबरदस्त एक वीडियो आज लेके आए हैं। एक मुस्लिम है और एक अस्कोन वाले जो है सनातनी है। तो दोनों आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, सनातन को डिफेंड कर रहे हैं वो मुस्लिम को सवाल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, कौन जो है अपने धर्म को यहाँ लेकर काफी बेहतर जो है यहाँ उसने अपने डिफेंड किया या कहीं ना कहीं जबरदस्त सवाल किए। तो उस हवाले से देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन। अगर इसके बाद जानना चाहे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। If we are reincarnating, how come there's more living beings today than there were before, right? Can you elaborate on that a little bit? So, like, for example, before I was born, where was I? You were in a different body, just like you had a body of a little boy, right? What's your name, by the way? My name is Basir. Basir, nice to meet you, Rama. Rama? Yeah. Nice to meet you. So, just like you had a body of a little Basir, teenager, adulthood, like now you're So, mature. was I like another human being? Or like, When was you I were another li- human when you being? were So, little? do you believe in reincarnation? Is what, like, before I was born, Yeah. I mean. So was I reincarnation, another human being? according to the Gita, reincarnation is something that happens as we leave. Like you had a body when you were a kid. That body is that body is here. Yes, this is the body I was But in. you're not a little, It just grew up, you're right? not it just grew up, right? Yep. So the body changed. But are you, is a different being in the body? जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था? ये प्रश्न है इस मुस्लिम का एक इजरायली हिंदू सन्यासी से, जिस पर ये इजरायली हिंदू सन्यासी उत्तर देकर ये कहता है कि आपके जन्म से पहले आप एक अलग शरीर में थे। हो सकता है कि आप किसी छोटे बच्चे के शरीर में हो या फिर कुछ और शरीर में हो। इसके बाद ये मुस्लिम कहता है कि क्या आपका ये मतलब है कि मैं किसी इंसान के शरीर में था जब मैं जन्मा नहीं था? तो आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? तो वापिस से ये इजरायली हिंदू सन्यासी कहता है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुनर्जन्म अमर आत्मा की एक निरंतर यात्रा है। आत्मा कभी मरती नहीं है, बल्कि बस पुराने हो चुके फिजिकल बॉडी को त्याग कर नई बॉडी धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। अगले जन्म में मिलने वाला शरीर व्यक्ति के कर्मों और मृत्यु के समय उसकी मन की मुख्य स्थिति से तय होता है। You're No, the I'm the same, same right? being. I'm Yeah, the same exactly. being, and it's the same body. So- I just grew up. But my question is, before I had this body, like before I Yeah. was born, like if Yeah. you go back, like 30, 40 years ago, I wasn't on this planet, right? So where was Yeah. I, according to? In a different body, just like you had a body of a little So child. you believe in but- reincarnation then? So I was another human being before? Yeah. Anything, yeah. Okay. This body, it transmigrates from one body to the other. And just Okay. like you say, God is God eternal. God is eternal, yes. Just as God is eternal, we're eternal. So then my question becomes is if we believe, and I always wanted to ask this to somebody who believes in reincarnation is, if we are reincarnating, how come there's more living beings today than there were before, right? If we're just recycling, how come there's more animals now than like 1,000 you know years ago? that? There's more human beings than. Well, Have you we know count- that. have you We've counted- we've tracked human population, right? So we know the human population like Yeah. 100 years ago. So Yeah. today, for example, we're over 8 billion people. Yeah. Just a few years back, we were just 6 billion people. So there's no new 2 billion people. Yeah. Could not possibly just be coming from like other animals who are becoming human, because even the animals are growing in Well, numbers. it's not. First of all, it's not exactly like that, and also it's not like we're not stressing like counting all the humans, and our stress is that we've been entrapped in the cycle of this birth and death. Maybe there's life there. I mean, and by the time you reach Mars, there are going to be more living entities here. So it's just, it's not a practical way how to scientifically verify something that is beyond our experience. लेकिन ये मुस्लिम इसी प्रश्न को बार बार डिफरेंट एंगल से रिपीट करता है और यहाँ पर खड़ी एक हिंदू महिला भी इसका सटीक जवाब देती है। कहती है कि सनातन के वेदों के माध्यम से कि जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब आप किसी एनिमल की बॉडी में हो सकते हैं।
या फिर कुछ और भी हो सकते हैं। और आगे ये मुस्लिम प्रश्न करता है कि अगर सनातन धर्म के अकॉर्डिंग रीइंकार्नेशन सच है, यानी पुनर्जन्म सच है, तो ऐसा क्यों है कि आज से कुछ हजारों साल पहले कम इंसान थे, यानी कि इंसानों की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम थी पर आज ज्यादा है। अगर पुनर्जन्म है तो ये नंबर क्यों इंक्रीज हो रहा है और ज्यादा इंसान कहां से आ रहे हैं? तो इस पर ये इजरायली हिंदू सन्यासी उत्तर देते हुए प्राउडली कहता है कि सनातन के वैदिक ट्रेडिशन के अनुसार आत्मा मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, कीट, जलचर, वनस्पति आदि अनेक योनियों में जन्म लेती है। कर्मों के अकॉर्डिंग कोई आत्मा पशु से मनुष्य बन सकती है और कोई मनुष्य से पशु बन सकती है और अन्य योनि में भी जा सकती है। इसलिए मानव आबादी बढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि नई आत्माएं बनाई जा रही है, बल्कि ये है कि जो जीव धरती से विलुप्त हो चुके हैं उन्होंने भी नया शरीर धारण किया हुआ है। और इसके अलावा भगवान ने भी अनलिमिटेड शाश्वत सोल्स बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि कौन है ये इजरायली हिंदू सन्यासी और ये किस कंट्री के मुस्लिम मेजोरिटी रीजन में जाकर सनातन का प्रसार कर रहा है? तो देखिए, इनके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। इनका नाम है रामचंद्र दास, एक इजरायली हिंदू सन्यासी जिसने जोड़िज्म के साथ साथ सनातन धर्म को अपनाया हुआ है, यानी कि यहूदी मजहब के साथ साथ सनातन को अपनाया हुआ है, जिसके चलते इन्होंने अपना नाम रामचंद्र दास रखा हुआ है। एट प्रेजेंट में ये अमेरिका की ऑस्टिन सिटी में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, मुस्लिम मेजोरिटी रीजन में, जहां पर मुस्लिम इनके सनातन ज्ञान के आगे टिक नहीं पा रहे हैं और अमेरिकन और इजरायली ऑडियंस कमेंट में इस इजरायली सन्यासी का समर्थन कर रही है। जहां पर एक यूजर इस डिबेट और इस इजरायली हिंदू सन्यासी के ज्ञान को सुनकर लिखते हैं कि जब आप किसी मुसलमान से मिले बस उनसे ये पूछे कि कयामत के दिन आप अल्लाह को कैसे देखेंगे, जबकि अल्लाह के पास कोई शरीर नहीं होगा, या अगर आप अल्लाह को देख भी लेते हैं तो उन्हें पहचानोगे कैसे? और अगर क्या हो कि आपके अल्लाह असल में भगवान श्री कृष्ण ही निकले तो आप कैसा महसूस करोगे? ये सवाल आप इन मुस्लिम से कर सकते हो। और एक ने लिखा कि ऊर्जा स्थिर रहती है, कुछ जानवर विलुप्त हो जाते हैं लेकिन ऊर्जा स्थिर रहती है, वही ऊर्जा इंसानों में आ जाती है या फिर दूसरे जानवरों के रूप में वापस आ जाती है। इसीलिए इंसानों की पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Types of Islam, just like in the Vedic tradition, there are many. Are you Sunni, Shia, Sufi? I know just about these three, right? Sufism, which is some people don't think it's Islam. So Sufism has Mystical, it's a mystical word. it's not different than what I guess they're saying with Sunni and Shia. Sufism is like an ideological framework that's part of Islam, Right. right? Like certain expressions of it may not be in line with like the rules. So in Islam, there's both faith and there's practice. But like from a faith perspective, we're pretty similar. I mean, nuances, right? But with faith, an expression of faith, we say is practice. So I'm wondering if you guys have a practice as part of. इस वीडियो में रामचंद्र दास इस दूसरे मुस्लिम के सामने प्रश्नों के जवाब देता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे अमेरिकन कीर्तन के माध्यम से मेडिटेशन करने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, रामचंद्र दास इजराइल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भी शामिल हो चुके हैं और दूसरे इजरायली ज्यूज को रथ यात्रा में शामिल भी कर चुके हैं। और जब भी ये इजराइल में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्णा का कीर्तन करते हैं तभी इजरायली मुस्लिम्स को सनातन के शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान भी देते हैं, जैसे कि आप इन वीडियोस में देखिए। तो दिल से सल्यूट है इस इजरायली हिंदू सन्यासी को, यानी कि रामचंद्र दास को, जो बिना किसी डर और भय के मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स में जाकर सनातन का पीसफुली प्रचार कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। आउट ऑफ कंट्री में जो लोग हैं, जो दुनिया बसती है, उनका अगर देखा जाए जो बात करने का एक स्टाइल होता है, जो वार्तालाप करने का स्टाइल होता है, वो बड़ा अलग है। पाकिस्तान इंडिया में अगर आप बात कर लें तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को लाइक नहीं करता हूँ। यहाँ के लोग जो है एकदम एग्रेशन में आ जाते हैं। कोई भी सवाल करता है, दूसरा बंदा ना तो उस सवाल को समझ पाता है, ना कहीं जवाब देने में वो कोई ऐसी कमी छोड़ता है जिससे इंसान का किरदार पता चले कि इसको क्या इसे तालीम और तरबियत या इसे नॉलेज है। मैं बड़े लोगों को सुनता हूं, मैं सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस देखता रहता हूं, जिसकी वजह से मैं देखता हूं कोई भी आज यहाँ पाकिस्तान इंडिया का जो बंदा है उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सवाल सुनने का भी जिन्हें ढंग है, या सवाल सुनने के बाद उसको कैसे डिफेंड किया जाता है
यहाँ के लोगों में मुझे ये लैक ऑफ नॉलेज लगती है कि वो इस चीज को अच्छे तरीके से जज नहीं कर पाते। सवाल कोई होता है, जवाब कोई देते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो हर एक कौम के लोगों को मैंने देखा आपस में इसी वजह से उलझते हुए देखा है। वो सवाल का असल जो जवाब बनता है वो नहीं दे पाते, क्यों? नॉलेज नहीं है, पढ़ाई है नहीं है। तो इंडिया में लोग कुछ ना कुछ फिर भी नॉलेज रखते हैं, वहाँ के लोग डिफेंड करते हैं जो भी सवाल हो। हम भी कहीं ना कहीं डिबेट करते रहे हैं। मैं कि पिछले काफी अरसे से कुछ इंडियन लोगों के साथ रहा हूँ, तो हम भी काफी मसलों पे डिबेट करते रहे, बात करते रहे, तो बहस मुबाहिसा हो जाता था। तो सबसे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक बहुत कह लो कि सख्त लैंग्वेज वाला एक कुणाल नाम का लड़का भी हमारे साथ आया, तो उसने जो बहुत ज्यादा गलत लैंग्वेज भी यूज की, तो हमने उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अपना किरदार को नहीं छोड़ा, उसे समझाया, वो नहीं समझा, उसे ब्लॉक कर दिया। बात मेन होती है कि एक तरीका होता है बात करने का जिससे ना मतलब हद क्रॉस ना की जाए, तो वो कुछ लोगों में नहीं होता। तो मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ, कुणाल जो है उसने इतनी हद क्रॉस की, ऐसी ऐसी बातें इस्लाम के ऊपर की जो उससे मैंने कहा कि हमारी सिर्फ 6 किताबें हैं और एक कुरान है और 6 किताबें, हम इसी में डिबेट करते हैं। इसके अलावा मैं उसे कहा कि आप जो है आप ले रहे हैं ये गूगल से चीजें ले रहे हैं, तो वो गूगल में तो हमारे खिलाफ जो है मर्जी कितना काम कर रहे हैं, तो हम उसे कैसे डिफेंड कर सकते हैं? तो हमारे साथ बात करेंगे, 6 किताबें हमारी हैं, उसमें बात डिबेट करो। तो ये एक अलग मौजूद ऐसे छोड़ते हैं। बाकी मेन बात आ जाती है एक हिंदू एक मुस्लिम आपस में आउट ऑफ कंट्री में जो डिबेट करते हैं, वो देखकर काफी अच्छा लगा। देखिए कि ऐसे एग्रेशन दिखाए बगैर बात करें, आप अपना जो नॉलेज है, अपने जो आपका धर्म कहता है वो ही आप आगे करें। आप गाली देना या ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो मुझे यहाँ जबरदस्त लगा। मुस्लिम ने जो उससे कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं थी कि जो ये होता है क्या लेके पुनर्जन्म या रिकार्नेशन जो कहा जाता है वो क्या होता है, उसे नहीं पता, तो उसने सवाल किया। फिर सनातन इसके बारे में क्या कहता है, उन्होंने कहा पहले जन्म में आप कुछ भी हो सकते हैं, इस जन्म से पहले आप छोटे बच्चे के रूप में भी हो सकते हैं। फिर सनातन ये भी कहता है आप किसी भी योनि में भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी जानवर में आप उसमें भी हो सकते हैं। तो वही इन्होंने बात बड़ी जबरदस्त तरीके से इन्हें जवाब दिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो है वो फिर ये है कि नॉलेज नहीं है ना जब, तो फिर अजीबोगरीब सवाल करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि बार बार इसी सवाल को रिपीट कर रहा था, उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी। फिर एक लड़की खड़ी थी, उसने भी उसके आगे उन्हें जवाब देने की कोशिश की। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है। मुस्लिम जो है सवाल तो उसने सही किए हैं, पर नॉलेज जो है आपके पास जब जीरो है, तो आप किसी ऐसे बंदे से बात ना करें जो कहीं ना कहीं आपसे आपके कह लो कि धर्म से तलक नहीं रखता। फिर कहीं ना कहीं बात ये थी कि मुझे ये सही लगा कि इन्होंने ज्यादा दोनों आपस में एग्रेशन नहीं हुए, उन्होंने एक दूसरे को बात समझाकर रफा दफा। उसके बाद इन्होंने दूसरे बंदे के साथ भी अगर देखा जाए डिबेट की है, जैसे उन्होंने फिर मुस्लिम के ऊपर सवाल किया ये सुन्नी शिया ये सूफीइज्म ये क्या है, तो उसमें भी अगर देखने के लिए मिलता है कि वो भाई साहब आगे से मतलब नॉर्मल सा उन्होंने डिफेंड किया है। इसके हवाले से उनके पास भी खास जानकारी नहीं थी, वह सूफीइज्म क्या होता है, शिया सुन्नी क्या है, वो आगे से उस तरीके का जवाब नहीं दे पाए। तो एक भाई पास खड़े थे, वो भी यहाँ से चले गए। और बात की जाए वो जो हिंदू बंदा था उसकी अगर बात की जाए तो वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है और कहीं ना कहीं वो यहूदी भी है और साथ सनातनी भी है, दो चीजों को वो फॉलो करता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए अलग था, बड़ा हैरान कुन था कि ऐसा भी होता है सनातन में। किसी भी आप रिलीजन से तलक रखते हो, अगर आप सनातन को जानते हैं तो उसका प्रचार करते हैं तो सनातनी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम के साथ ज्यादा डिबेट करते हैं, क्योंकि अमेरिका के एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ मुस्लिम ज्यादा हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये मुझे बात हैरान को लगती है, क्योंकि सनातनी कुछ लोगों को मैंने सुना है वो कहते हैं कि हम अपने धर्म का प्रचार नहीं करते, कि किसी को कन्वर्ट हम लोग नहीं करते कि आप हमारे धर्म में आए। पर मैंने 2-3 वीडियो इसी चैनल के ऊपर देखी हैं कि बहुत सारे सनातनी जो आउट ऑफ कंट्री वाले हैं वो मुस्लिम को उनके भगवत गीता बांटते हुए देखा गया है। उन्होंने लेबनानी लैंग्वेज के अंदर भी भगवत गीता बांटी है उन्होंने। उसके बाद एक और कंट्री है उसकी लैंग्वेज में भी उन्होंने भगवत गीता को बांटा है और अरबिक लैंग्वेज में भी बांटा है। तो अब अगर मैं अगर कोई बात करें कि सनातनी कन्वर्ट नहीं करते, तो ये बात अभी झूठ है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज्यादा सनातनी भी कह लो कि अपने धर्म का प्रचार इस तरीके से कर रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम और बहुत सारे दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए जो है ना तालीम दे रहे हैं। तो ये मेरे नजदीक यही है कि हर बंदा जो है वो अपने आप को बेहतर मानता है, सही मानता है कि हम सही हैं, दूसरा कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे है, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज फिर करते हैं कि वो अपने धर्म को प्रचार करते हैं। तो इसी तरह मुस्लिम भी हैं, इसी तरह सारे भी कर रहे हैं। पर मेन बात ये आती है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए जो चीज चल रही हो। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान में मैं सनातनियों को ज्यादा इस चीज पे नहीं देखा, बाकी ये है कि आउट ऑफ कंट्री में ये काम चल रहे हैं।
बिल्कुल जी, ये सवाल मेरा भी था और मैंने एक बंदे से पूछा था, लेकिन वही बात है कि जब हमें जवाब मिलता है तो हम मुत्मिन हो जाते हैं। मैंने भी यही कहा था, मैंने कहा था कि आउट ऑफ कंट्रीज में इस तरह से होता है कि सनातन का प्रचार किया जाता है, तो उसने कहा कि कन्वर्ट करना और प्रचार करना दोनों डिफरेंट है, दोनों में फर्क है। मैंने कहा किस तरह से फर्क है? उसने कहा कि अगर हम भागवत गीता देते हैं या हम कह लें कि भजन कीर्तन करते हैं, तो हम किसी को जो है ना वो नहीं कहते कि तुम भी ऐसा ही करो, हम उसको कहते हैं कि ये एज अ ज्ञान तुम लो। मतलब कि अगर भागवत गीता देते हैं तो एज अ नॉलेज हम उसको देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आज के बाद तुम ये पढ़ने के बाद तुम हिंदू हो जाना। हम कहते नहीं है किसी से हिंदू हो जाए। भजन कीर्तन में कोई आ रहा है, कोई फेस्टिवल में शामिल हो रहा है, अगर उसको खुद अच्छा लग रहा है, उसका मन कर रहा है उस चीज को एक्सेप्ट करने का, तो ही वो करेगा। मतलब उसके साथ जबरदस्ती उसे, जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो कहते हैं ना कि तुम जहन्नुम में चले जाओगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर डर का एक माहौल बनाकर तो उसको जो है ना वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सनातन में मैंने हुआ होगा, लेकिन मैंने आज दिन तक नहीं सुना कि ऐसा हुआ, क्योंकि मैं तो तभी कहूंगा जब मैंने देखा सुना होगा। वैसे तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, नहीं होता। तो मैंने जहां तक देखा है, मैंने यही देखा है कि किसी भी सनातनी को आज दिन तक नहीं सुना मैंने कि किसी ने ये कहा हो कि अगर तुम सनातन में नहीं आओगे तो तुम नरक में जलोगे या तुम नरक में चले जाओगे। एज अ ज्ञान के तौर पर भागवत गीता या पुराण या इस तरह के कह लें कि भजन कीर्तन जो भी किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान के लिए किया जाता है, एक ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए किया जाता है कि भाई इसको स्टडी करो, इसमें बहुत सारा ज्ञान है, इसमें वो चीजें मौजूद हैं जिनकी आपको तलाश है। तो इन चीजों को वो जब उस बंदे को अपने प्रश्नों के जवाब मिलते हैं तो वो खुद ब खुद उस तरफ कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि किसी को करने की जरूरत है नहीं है। तो हम भी यही चाहते हैं कि इस्लाम में भी ऐसा लोगों को करना चाहिए कि भाई अगर आप किसी को कहते हैं तो आप उसको समझाएं, आप उसको बताएं, अगर उसको अच्छा लगे तो वो मान ले, लेकिन ये नहीं कि उसके पीछे ही पड़ जाए कि भाई तुम ये करो ही करो, करो ही करो, तुम अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। ये चीजें और ये चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। इन्होंने जो सवाल किए हैं भाई साहब ने, जो मुस्लिम थे, उन्होंने जो सनातनी भाई से सवाल किए हैं उनको बड़े अच्छे किस्म के उत्तर मिले हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं पहले था तो मैं कौन था, मैं कहाँ पे था, तो उन्होंने फिर बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि भाई इस तरह से है कि तुम किसी भी रूप में हो सकते हो, तुम्हारी आत्मा जो है उसका मरण नहीं है, वो कभी मरती नहीं है। ये तो सारे ही तकरीबन धर्मों में पढ़ाया जाता है कि आत्मा जो है उसका मरण नहीं होता, वो हमेशा जीवित रहती है। ये हमारे जो होल कह लें, एक लिबास कह लें जो हमने पहना हुआ है शरीर का, तो ये कभी भी आत्मा त्याग कर दूसरा लिबास जो है वो चेंज कर सकती है, दूसरा कोई रूप धारण कर सकती है। वो कोई भी रूप हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान का ही रूप होगा, वो कोई भी रूप हो सकता है। आत्मा वही होगी, रोल उसका अलग होगा, शरीर अलग होगा, शरीर के हिसाब से उसके रोल होंगे, तो वो उस तरह से कह लें कि फिर यहाँ पे संसार में चलेगी। तो बड़े अच्छे तरीके से उत्तर दिए हैं भाई साहब ने, वीडियो देख के काफी अच्छा लगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है सनातन के हवाले से कि क्या सनातन धर्म में लोग जो हैं वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या सिर्फ सिर्फ और सिर्फ समझाते हैं या ज्ञान देने की नीयत से ये सारी चीजें बताई जाती हैं या इनका प्रचार किया जाता है? इसका क्या रीजन हो सकता है वो आप लोग बताएं। बिल्कुल जी। और साथ में एक सवाल जो है कमेंट सेशन में किया गया कि जो है अल्लाह ही ईश्वर हो सकता है, तो ऐसा एक सवाल किया गया है। तो ये हर फेथ का अलग अलग हिसाब है। सनातन में ये माना जाता है कि जो है सनातन में ये माना जाता है कि श्री कृष्ण और राम जी हो, ये सारे ही ईश्वर का रूप हैं। पर हमारे धर्म में अगर मजहब में अगर बात की जाए तो हमारे मजहब में डिफरेंस है। इसमें हम सिर्फ अल्लाह को अल्लाह ही मानते हैं, बाकी उसके कह सकते हैं जो आत्मा होती है उसी में उसका कुछ हम हमें हमारे नजदीक माना जाता है। जो मैंने पहले पढ़ा था, अभी मुझे इतना उसका याद नहीं है। बाकी हम जो है ऐसा किसी भी हमारे जैसे मुस्लिम में भी शिया लोग हैं, वो जो है हजरत अली को खुदा मानते हैं। वो कहते हैं उनमें भी ऐसे दो फिरके पाए जाते हैं, वो भी ये हजरत अली को खुदा मानते हैं। तो ये पूरी दुनिया में अलग है। और अगर क्रिश्चियन को देखा जाए तो क्रिश्चियन जो है वो कहीं ना कहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह का बेटा मानते हैं, और कहीं ना कहीं जो अल्लाह है उसके हवाले से भी वो काफी ज्यादा अजीबो गरीब सी वो बातें करते हैं। तो ये हर मजहब हर धर्म का मेरे नजदीक जो है वो डिफरेंस है। हर एक जो है अपनी किताबों के हवाले से मानता है। तो इसलिए सनातन लोग जो है
वेद और कह लो कि उनके माध्यम से जो उसमें लिखा है उससे मानते हैं, और मुस्लिम जो हम कुरान पढ़ते हैं, हमारी तो एक सूरत है, हम उस माध्यम से ईश्वर को मानते हैं। इसके अलावा हम हमारे नज़दीक कोई भी जो इंसान है वो उसका रूप इख्तियार नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।